Dear students, today we will solve questions of brain teasers. Now come over. Question number 1, A part. Tick the correct answer. A. The opposite edges of a rectangular blackboard are. The opposite edges of a rectangular blackboard are. आपके पास एक ब्लैक बोर्ड है. टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस. लेट अस सपोज इट इज योर ब्लैक बोर्ड. एजेस मीन्स किनारा, उल्टा अपोजिट किनारा मतलब ए और दोनों. टेल मी दीज टू विल बी पैरेलल और परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग और नथिंग, नन. No doubt both are parallel, opposite edges are parallel to each other. Right? Now come over B. In the given figure, this very figure, in the given figure, T is a transversal. See here, we have two lines L and M, which are cut by a line T at two different points. Right? The angle A and B are forming. यह जो दोनों एंगल है, एंगल A और एंगल B, the angle A and B are forming alternate angles, alternate interior angles, a linear pair, corresponding angles. Tell me, no doubt, both will be a linear pair. Come over number 3, C. A pair of corresponding angles in the given figure is. A pair of corresponding angles. See here. See this very figure. We have two lines. One line is this and another line is this, which are cut by this very transversal. इस transversal के द्वारा cut हो रहा है. Right? Which are cut by this very transversal. तो इसमें से आपको बताना है corresponding angles. Right? इसमें आपको बताना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. जैसे है अगर वन एंगल लेते हो तो उसका करस्पॉन्डिंग जो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, जो है ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में लाई करता है, और जो है नीचे तो नीचे या ऊपर तो ऊपर. तो अगर यह नीचे में है तो उसका नीचे 3. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी 1 and 3. सो आंसर 4th विल बी राइट. राइट. Now come over question number D. In the given figure, T is a transversal. See here, here we have two lines AB. Here we have two lines. Here we have two lines AB and CD, which are cut by a transversal T at two different points. Right? Then you have to tell B and H are. Angle B जो है, where is angle B? Angle B is this. And angle H. Both are no doubt, both are exterior angle. और एक ट्रांसवर्सल के इस साइड है और दूसरा ट्रांसवर्सल के उस साइड है. So both will be alternate exterior angle. Both will be alternate exterior angle. Right? Now come over E. In the given figure, in the given figure below, in the figure given below, ये जो फिगर 4 फिगर्स दिए गए हैं, the angles marked as alternate angles. वह कौन सा एंगल है जो कि alternate angles हैं? Right? Then see here, अगर आप दो ट्रांसवर्सल लेंगे, एक ये और एक ये, तो एक ट्रांसवर्सल ये माना जाएगा, दूसरा ट्रांसवर्सल ये माना जाएगा. एक इस पे एंगल दिया गया है, एक एंगल इस ट्रांसवर्सल के लिए, एक एंगल इस ट्रांसवर्सल के लिए है. सो these will not be alternate angles. ये नहीं होगा. इसमें देखो तो again now see here, you can see कि we have two lines this and this, which are cut by a transversal this और ट्रांसवर्सल दिस. दोनों दो ट्रांसवर्सल के पास एंगल बन रहा है, इसमें भी अल्टरनेट एंगल्स नहीं होंगे.
Now come over here. One line is this, another line is this, which are cut by a transversal, right? And both are lying on the same side of the transversal. तो alternate नहीं होगा, एक इधर एक उधर होना चाहिए. Now come over 4. One line is this, another line is this, which are cut by a transversal. एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है. देखो फिगर ध्यान से. So these two angles will be alternate angles. So right answer will be or is answer number 4, right? Now come over B. Answer the following questions. Number A. Name any two pairs of parallel edges in the following cube. फर्स्ट सी क्यूब नंबर ए है ABCD EFGH, एक क्यूब है. इसमें जो है पैरेलल एजेज बताना है, जो कि किनारा एक दूसरे के पैरेलल है. तो जरा ध्यान से देखना. दिस विल बी पैरेलल टू दिस, दिस विल बी पैरेलल टू दिस, विल बी पैरेलल टू दिस, विल बी पैरेलल टू दिस. तो इसमें से कोई दो लाइन लो और पैरेलल लिख दिखा दो. दे विल बी पैरेलल, राइट? दे विल बी parallel. If you want to write, then we can write AF will be parallel to BH. फिर AF will be, you can write AF will be parallel to CD. यह जो AF है CD के भी पैरेलल है. फिर AF will be parallel to GE also, GE. तो इस AF के साथ 3 लाइन्स पैरेलल है, 1 2 3. आप लिख सकते हैं दिस विल बी पैरेलल टू दिस, दिस विल बी पैरेलल टू दिस. यू कैन राइट दिस विल बी पैरेलल टू दिस. अभी और लाइन्स हैं. दिस विल बी, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, 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 दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन. आपको केवल 2 ही पेयर लिखना है, बट here we are getting large number of parallel lines. Now come over number B. Name all the transversals to the segment AC and FD. AC जो है ये वाला और FD है ये वाला. इस पर जितने ट्रांसवर्सल है वो बताइए. तो one transversal is this, another one is this, and third one is this. किसको ट्रांसवर्सल कहेंगे? Which cuts both lines एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो इसके आंसर्स हो जाएंगे AF, BE एंड CD, राइट? नाउ कम ओवर क्वेश्चन नंबर सी. देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर देयर. इस क्वेश्चन में अल्टरनेट एंगल्स कितने हैं, कितने पेयर हैं? तो जरा ध्यान से देखना. फर्स्ट यू कम नंबर एंगल नंबर 1. एंगल नंबर 1 का अल्टरनेट एंगल कौन होगा? तो देखो जरा ध्यान से. अगर ये दोनों साइड, इफ यू आर टेकिंग these two sides, this and this, and you are taking this as transversal, this as transversal, तो ये दोनों हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स. अगर इस ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये दोनों हो जाएगा अल्टरनेट एंगल. सो अल्टरनेट एंगल्स विल बी एंगल 1, अल्टरनेट एंगल्स विल बी एंगल 1 एंड एंगल 5. एक पेयर हो गया. दूसरा पेयर एंगल 3 एंड एंगल 6, राइट? एंगल 3 एंड एंगल 6. देखो तो और भी पेयर इसमें होगा नहीं. एक और पेयर एंगल है 4 and 2, बट दीज टू आर नॉट अल्टरनेट एंगल्स, दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. नाउ कम ओवर क्वेश्चन नंबर डी. फ्रॉम द गिवन स्क्वायर राइट एनी 2 पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स. परपेंडिकुलर साइड बताइए. तो परपेंडिकुलर साइड कब बनता है? जब एक साइड पर दूसरा साइड जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है. तो देखो, तो एक यहाँ बन रहा है एंगल 90 डिग्री का. इट मीन दैट वी कैन राइट AD is perpendicular. परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है. देन वी कैन राइट AD is perpendicular to DC. यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बन रहा है. देन वी कैन राइट AD will be
परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ए बी पर लोगे तो ए बी पर परपेंडिकुलर ए बी है, जिसको हम लोग लिख चुके हैं, ए बी परपेंडिकुलर है, देन वी कैन राइट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। इस बी सी पर परपेंडिकुलर ए बी है, देन वी कैन राइट बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, राइट। देयर आर 4 pairs. Now come over question number E. Question number E. In the given figure, name the angle alternate to angle 3. एंगल 3 का alternate एंगल लिखिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा। Let us suppose we are taking these 2 sides. यह दोनों साइड ले रहे हैं, तो इस पर जो है ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, दिस वेरी साइड विल बी ट्रांसवर्सल। तो 3 का अल्टरनेट कौन होगा? अल्टरनेट 3 का होगा 6, राइट। एक तो हो गया एंगल 6, दूसरा और कौन हो सकता है? अब दूसरा साइड सोचो जरा सा, एक ले लो साइड ये, take one side this, take one side this and another side this। तो 3 का अल्टरनेट एंगल कौन होगा? ये होना चाहिए यह, लेकिन ये दिया हुआ नहीं है। सो आंसर विल बी ओनली 1 एंगल 6, राइट। नाउ कम ओवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर गिवन बिलो। ये फिगर है, इसमें आपको पैरेलल लाइंस बताने हैं। देन व्हाट वी शुड से, दिस विल बी पैरेलल टू दिस। और कौन होगा? इसके लिए तो कोई दूसरा लाइन ही नहीं है। सो इन ए वी विल राइट ओनली ए बी विल बी पैरेलल टू, पैरेलल का सिंबल ये होता है 2 लाइन सी डी, राइट। नाउ कम ओवर क्वेश्चन नंबर बी। इसमें पैरेलल लाइंस, ढेर सारे पैरेलल लाइंस हैं। दिस इज पैरेलल टू, वी कैन राइट दिस इज पैरेलल टू दिस, 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 दिस इज पैरेलल टू दिस। सो वी कैन राइट AD is parallel to EH, AD is parallel to FG, AD is parallel to BC। AD के लिए पैरेलल 3 लाइन हो गया। अब HE आ जाओ। HE इज पैरेलल टू, HE AD के पैरेलल है, लेकिन इसको हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ, सो नहीं लिखेंगे, इसके लिए नहीं लेंगे। अब 2 बचे हुए जो साइड है उसके लिए लेंगे। FG and HE is parallel to पैरेलल टू CD और BC, CB। अब इसके लिए, अब इधर वाला दोनों हो गया है, इसको लेंगे केवल, मीन्स वी कैन राइट GF विल बी पैरेलल टू CB, राइट। Now come over next question. Your next question is question number 3. Identify alternate angles and corresponding angles from the given figure. इस फिगर में आपको alternate angle भी बताना है और corresponding angles भी बताना है। First of all, I am coming over alternate angles. Alternate angles. For 1 के लिए अल्टरनेट एंगल कौन होगा? एंगल, बिकॉज इट इज एक्सटीरियर, सो एक्सटीरियर ही लेंगे इस साइड वाला। एंगल 1 इज अल्टरनेट टू एंगल 4। सेकेंड पेयर जब 2 लेंगे तो इसके लिए इस साइड वाला 3 हो जाएगा, दोनों इंटीरियर। एंगल 2 इज अल्टरनेट टू एंगल 3, दूसरा पेयर हो गया।
नाउ कम ओवर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, CORRESPONDING, corresponding angles, राइट। corresponding angles किसको कहते हैं? corresponding angles, corresponding angles, CORRESPONDING, corresponding angles, right। corresponding angles, when you will take angle 1, तो corresponding angles कौन सा होता है? ट्रांसवर्सल की एक ही साइड वाला, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर, एंगल 1 एंड एंगल 3। लेफ्ट साइड 2, नीचे है तो नीचे नीचे, 2 एंड 4, राइट। Now come over question number 4. Look at the figure and name the question number is angle corresponding to angle F. F जो एंगल है इसका corresponding angle. Then see here F is this. यहाँ पर कह देंगे M and L and M are two lines which are cut by transversal N. Right. तो एफ का करस्पॉन्डिंग जो होता है ऑलवेज ट्रांसवर्सल की एक ही साइड होता है, राइट। और ऊपर वाला ऊपर, नीचे का नीचे। तो अगर एफ यहाँ देखो ऊपर में है, राइट, तो इसका ऊपर ट्रांसवर्सल की इस साइड कौन होगा? ए होगा। इट मीन दैट आंसर विल बी एंगल ए, राइट। एंगल अल्टरनेट टू ए, अब जो है एंगल अल्टरनेट टू ए बताना है। नंबर बी एंगल अल्टरनेट टू ए का अल्टरनेट अपोजिट साइड में होता है और ये एक्सटीरियर है तो इसका एक्सटीरियर होगा एच, एंगल एच, राइट। नाउ कम ओवर सी एंगल अल्टरनेट टू एंगल डी। सी here D is here। अब अल्टरनेट एंगल मीन्स जो होता है ट्रांसवर्सल के एक साइड ये, दूसरे साइड दूसरा। तो डी है एक्सटीरियर एंगल है, तो दूसरे साइड एक्सटीरियर एंगल विल बी जी, आंसर विल बी एंगल जी, राइट। नाउ कम ओवर सी एंगल करस्पॉन्डिंग टू एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल, तो सी है कहाँ? ये करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होते हैं, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, तो नीचे इस साइड में एच, सो आंसर विल बी एंगल एच, राइट। Now come over next question. Your next question is question number 5. In the given figure, name the angles corresponding to angle 2. ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3 साइड्स हैं, this and this, which are cut by a transversal this. अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताना है। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होता है? ट्रांसवर्सल की एक ही साइड होता है, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। तो 2 का बताना है। 2 का आपका ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, तो 2 का ऊपर में है, तो ऊपर का ऊपर यहाँ, लेकिन है ही नहीं। इस 2 का ऊपर यहाँ 5, सो आंसर विल बी एंगल 5। करस्पॉन्डिंग टू एंगल 4 का ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है या नीचे है, तो नीचे का नीचे एक यहाँ है, नॉट गिवन। अब नीचे में देखो तो नीचे का एक जो है ये यहाँ है 6, आंसर विल बी एंगल 6, राइट। नाउ कम ओवर क्वेश्चन नंबर बी अल्टरनेट एंगल। वी हैव टू नाउ टेल अल्टरनेट एंगल टू एंगल 1। एंगल 1 का अल्टरनेट क्या होता है? एक राइट साइड तो एक लेफ्ट साइड, ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड तो एक लेफ्ट साइड, एक्सटीरियर तो एक्सटीरियर, इंटीरियर तो इंटीरियर। 1 इज ऑन राइट साइड, तो इसका जो अल्टरनेट होगा लेफ्ट साइड में होगा, एंड इट इज एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल कौन होगा? 4 हो सकता है, इस साइड के साथ 6 हो सकता है। देयर विल बी 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल 4, एंगल 1, एंगल 4 एंड एंगल 6, राइट।
Now come over, alternate to 5. 5 here is 5, 5 is here. It is interior angle. तो दूसरा इसका अल्टरनेट होगा दूसरे साइड में, और वो भी इंटीरियर होगा, तो एक इंटीरियर 8. आंसर इज 8. दूसरा इसका होगा इस लाइन के साथ यहाँ होगा, बट here एंगल इज नॉट मेंशन्ड, सो ओनली आंसर विल बी एंगल 8. राइट. Okay, my dear.